Hello students, welcome you all in online education, English medium, and our subject is mathematics. Standard 8, chapter number 14, factorization. Session number 5. In the previous session we have seen that how we can divide the algebraic expressions using factorization, and we did the sums of exercise 14.3 till question number 2. So in today's particular session, we will do the rest of the sums of exercise 14.3. So let's start with question number 3. In question number 3, work out the following divisions. Okay, so we have to do divisions. The first one is 10x minus 25 divided by 5. Then 10x minus 25 divided by 2x minus 5. Then 10y into 6y plus 21 divided by 5y plus 7. Then 9x square y square 3z minus 24 divided by 27xy z minus 8. Then 96 abc 3a minus 12 5b minus 30 divided by 144 in bracket a minus 4 into b minus 6. So we have to do the following divisions. So let's start one by one. First one, 10x minus 25. First we have to factorize this term. So 5 will be taken as common. So 2x minus 5 upon 5. तो ये 5 क्या हो गया, कैंसल. तो बचा क्या, 2x minus 5. Got it? Then second one. Dividend is same, only divisor is different. So 10x minus 25 upon 2x minus 5. So 5 will be taken as common. So 2x minus 5 upon 2x minus 5. तो ये 2x minus 5 और 2x minus 5 कैंसल, बचा क्या, 5. Got it? Then third one, 10y 6y plus 21 upon 5 2y plus 7. अभी हमको यहाँ पर कॉमन लेना है. तो क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, 6y और 21 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है. तो 10y into 3 will be taken as common. तो 2y plus 7 upon 5 2y plus 7. अभी कॉमन फैक्टर ये कट गया, 5 2 जा 10. तो क्या आएगा, 2y into 3 that is 6y will be our answer. Then fourth one, 9x square y square 3z minus 24 upon 27xy z minus 8. अभी 9 3 जा 27 है ना. पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है. तो ये 3z और 24 में कॉमन क्या है, 3. तो z माइनस 8 3. तो z माइनस 8 और z माइनस 8 कट गया. फिर मैंने जैसे किया था 9 3 जा 27 और ये 3 और ये 3 कट गया. क्लियर. तो बचा क्या, x स्क्वायर में से x गया तो x, y स्क्वायर में से y गया तो y. समझ में आया, एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई किया यहाँ पर. अभी 9 3 जा 27 ही होता है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको कट कर दिया. क्लियर, इजी है ना. देन फिफ्थ वन. तो खाली प्रॉपरली अगर आपने फैक्टराइज कर लिया तो आप इजीली कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हो. तो पहले हमको ये फैक्टर ही फाइंड कर लेना है. कुछ फैक्टर्स हमें देखते ही समझ में आ जाते हैं, पर कुछ हमको फैक्टराइज करना पड़ता है. क्लियर. अभी देखो 96 एंड 144
4. ओके, नाउ अभी सबको फैक्टराइज करेंगे। ये 3a माइनस 12 और 5b माइनस 30 इसको भी फैक्टराइज करेंगे ना, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 4 इंटू 5 कॉमन आएगा तो b माइनस 6। क्लियर। फिर 144 और 96 को फैक्टराइज कर दो। 12 12 जा कितना होता है, 144 होता है ना, एंड 12 8 जा 196। बट हमको ऐसे नहीं करना है, सारे फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी हम सारे कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देते हैं। क्लियर। तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, देन 2 2, देन अगेन 2, देन 3 3 3 and 3, then a minus 4 and b minus 6 both will be cancelled. Now what is remaining? 2 and 5. So 2 5s are 10 and literal factor are a, b, c. So 10 a, b, c will be your answer. Got it? Then question number 4. Divide as directed. सब डिवीजन ही करना है। फोर्थ वन, 5 2x plus 1 into 3x plus 5 divided by 2x plus 1. क्लियर। ये सामने दिखा, ये कट जाएगा। देन 26xy into x plus 5 y minus 4 divided by 13x into y minus 4. Then 52pqr p plus q q plus r plus p and 104pq into q plus r and r plus p. Then 20y plus 4 y square minus 5y plus 3, then divided by 5y minus y plus 4. Then x into x plus 1 x plus 2 x plus 3 divided by x into x plus 1. Okay, now let's do the solution. First and second, as I told you, 2x plus 1 2x plus 1 कॉमन कट गया। अभी जब डिविजर ही कट गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं है डिवाइड करने के लिए। तो 5 इंटू 3x प्लस 5। ओके, देन 26, तो 26 कुड बी रिटर्न एज 13 2 जा 26, देन xy, नाउ y minus 4 कैंसिल, 13 13 कैंसिल, x कैंसिल, तो बचा क्या 2y इंटू एक्स प्लस 5। ओके, समझ में आया, ये 2 और y और इधर x प्लस 5। तो जो कॉमन था वो हमने कट कर दिया, जो बचा उसको असेंबल करके लिख दिया। देन थर्ड वन, 52pqr p प्लस q q प्लस r r प्लस p डिवाइडेड बाय 104pq q प्लस r एंड r प्लस p। अभी 52, 13 4 जा 52, so 13 is a prime number and 4 will be factorized as 2 into 2, अभी 104, 13 8 जा 104, तो 2 into 2 into 13। अभी कॉमन फैक्टर्स कट करो, ये 2 2 2, देन 13 13 p p q q, अभी q प्लस r r प्लस p, तो बचा क्या r into p plus q in dividend and 2 in divisor. So the answer will be r p plus q upon 2. Got it? इजी है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 r into p plus q. Clear? Then fourth one, 20y plus 4
into y square plus 5y plus 3 divided by 5y plus 4. ओके कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ये 5 और ये y plus 4 कट जाएगा, बाकी जो है सब वैसे ही रह जाएगा। हमने 5 4 जा 20 डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, ठीक है। सो 4y square plus 5y plus 3, दिस इज योर आंसर। देन फिफ्थ वन, x into x plus 1 into x plus 2 into x plus 3, ओके। देखो अभी यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, तो x plus 1 और x plus 1 कट जाएगा, x कट जाएगा। सो x plus 2 into x plus 3, क्लियर। देन फिफ्थ वन, factorize the expressions and divide them as directed. So these are the question. Y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5. Then m square minus 14m plus 32. Then m plus 2. यहाँ पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो हम फैक्टराइजेशन करते थे ना पहले, वो करना पड़ेगा। देन हम उसको डिवीजन करेंगे, ओके। Now 5p square minus 25p plus 20 divided by p minus 1. Then 4yz, z square plus 6z minus 16 divided by 2y into z plus 8. Then 5pq, p square minus q square divided by 2p into p plus q. Then 12xy, 9x square minus 16y square divided by 4xy into 3x plus 4y. And the last one is 39y cube, 50y square minus 98 divided by 26y square into 5y plus 7. Got it? Now let's do the solution one by one. सबसे पहले क्या था, y square plus 7y plus 10। अभी हम y square और 10 फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आया 10y square, यानी 10y square को हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका सम हमको कितना मिलना चाहिए 7y, ओके। उसका सम कितना मिलना चाहिए 7y। अभी 10 के फैक्टर क्या क्या है, 2 5 जा 10 एंड 10 1 जा 10। अभी 10 1 जा 10 तो नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे 2 5 जा 10। प्लस का है इसलिए कोई टेंशन नहीं, दोनों डायरेक्ट प्लस कर देंगे। y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, ओके। अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे, y कॉमन आया तो y प्लस 5, फिर 2 कॉमन आया तो y प्लस 5। अभी फिर रीग्रुपिंग करेंगे, y प्लस 5 इंटू y प्लस 2, क्लियर। तो हमने स्प्लिट करके क्या निकाला फैक्टर्स, y प्लस 5 इंटू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। तभी ये कैंसिल हो गया, बचा क्या y प्लस 2। गॉट इट। देन सेकेंड वन, वो भी वैसा ही है। यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या है उसका प्रोडक्ट 32m स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या टर्म लेना पड़ेगा, 16 2 जा 32 है ना, 16 2 जा 32, 8 4 जा नहीं ले सकते क्योंकि इसका सम हमको कितना चाहिए -14m। तो माइनस में आंसर है, इसका मतलब डेफिनेटली जो बड़ा फैक्टर है वो नेगेटिव है। सो -16 प्लस 2 विल गिव अस -14, क्लियर।
और 16 इंटू 2 34 तो होता ही है। सो लेट्स फैक्टराइज m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। m कॉमन आ गया तो m माइनस 8, यहां पर 2 कॉमन, ठीक है। यहाँ पर 16m है, ठीक है ना, 8 नहीं 16m है, तो m माइनस 16 बिकॉज 16 2 जा 32। अभी रीग्रुपिंग करेंगे तो m माइनस 16 इंटू m प्लस 2। क्लियर। तो हमको क्या टर्म फैक्टर्स क्या मिले, m माइनस 16 इंटू m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2, m प्लस 2, m प्लस 2 कैंसल, आंसर इज m माइनस 16। गॉट इट, इजी है ना। तो डिवीजन में भी फैक्टराइजेशन के सारे मेथड यूज हो जाएंगे आपके। देन थर्ड वन 5p स्क्वायर प्लस माइनस 25 प्लस 20। तो इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है 5, उसको हम कॉमन ले लेंगे। ओके, अगर नहीं भी लोगे तो भी हो जाएगा यहाँ पर आप 5 कॉमन लेके भी करोगे तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, देखो यहाँ पर अगर आपने 5 कॉमन लिया तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। क्लियर, ये ऐसे टर्म आएगा, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, बट यहाँ पर हम कॉमन नहीं लेंगे। तो 520 जा 100 है ना, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है प्रोडक्ट 100p स्क्वायर। बट हमको इसको 100 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका सम कितना आना चाहिए माइनस 25p, तो माइनस 20 माइनस 5p। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100p स्क्वायर भी आ जाएगा और सम करेंगे तो माइनस 25p। सो 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20। क्लियर। अभी 5p कॉमन क्या आएगा 5p, तो p माइनस 4, यहां पर भी माइनस 5 कॉमन आएगा तो p माइनस 4, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। ठीक है, अभी कॉमन क्या है p माइनस 4, p माइनस 4, तो फिर से रीग्रुपिंग करेंगे तो p माइनस 4 इंटू 5p माइनस 5, बट यहाँ भी 5 5 कॉमन है और हमारा फैक्टराइजेशन का रूल क्या बोलता है, तब तक फैक्टराइजेशन करना है जब तक कि इरेड्यूसिबल टर्म ना आ जाए। तो p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, तो p माइनस 1 p माइनस 1 कट गया, बचा क्या 5 इंटू p माइनस 4। समझ में आया, देखो ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है 5 कॉमन था इसलिए हमने 5 कॉमन ले लिया, नहीं तो कुछ कैंसिल ही नहीं होता। नीचे क्या था p माइनस 1, गॉट इट। देन फोर्थ वन 4 yz इंटू जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस 16। तो इसका टर्म अगर स्प्लिट करेंगे तो 16 है। 16 को कैसे करते हैं, या तो 8 2 जा 16 या 4 4 जा 16, बट हमको क्या चाहिए प्लस 6z चाहिए, मिडिल में टर्म क्या चाहिए 6z, यानी कि ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसका सम कितना होना चाहिए 6z। तो हम क्या लेंगे 8z माइनस 2z, तो प्लस 6z आ जाएगा कि नहीं, देखो यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16। अभी यहाँ पर ये ग्रुपिंग करेंगे तो z कॉमन, तो z प्लस 8, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो z प्लस 8। इजी है ना।
ओके, ये 4yz तो पहले से है ही, अभी यहाँ पर z कॉमन, तो वह z प्लस 8 और इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो z माइनस 2। नाउ इस 2 में से ये 2 2 जा 4 कट गया, तो बचा क्या ऊपर 2yz। क्लियर, और एक z भी इधर रह जाएगा, और ये z प्लस 8 कैंसल, तो बचा क्या, ये y भी कट गया, तो 2z इंटू z माइनस 2। क्लियर, तो जो कैंसल हो जाएगा उसको कैंसल करेंगे, जो बच गया वो हमारा आंसर। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अभी ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी है, p प्लस क्यू इंटू क्यू, p माइनस क्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्टराइज कर दो, 5pq इंटू p प्लस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन 2p p प्लस क्यू। क्लियर, ये p कैंसल, ये p क्यू कैंसल, तो बचा क्या 5q माइनस p माइनस क्यू अपॉन 2। गॉट इट, इजी है ना। देन सिक्स्थ वन, 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 4xy 3x प्लस 4y। अभी फिर हम फैक्टराइज करेंगे, ये 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 16y स्क्वायर को 4y का होल स्क्वायर। क्लियर, तो अभी देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y इंटू 3x है, देखो हो गया ना, तो 4 3 जा 12, xy कट गया, तो 3x प्लस 4y भी कट गया, बचा क्या 3x माइनस 4y, और यहाँ पर ये 3। इजी है ना। देन सेवेंथ वन, 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 अपॉन 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। इसमें कॉमन क्या है, 50 और 98 में 2 कॉमन है, 2 25 जा 50, 2 49 जा 98, 2 को कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा क्या 25y स्क्वायर माइनस 49। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। ओके, सो 5y स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और 2 कॉमन है ही, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7, और 2 कॉमन, और 13 26 नीचे है, 39 ऊपर है, तो 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26, तो ये 13 13 कैंसिल, y क्यूब में से y स्क्वायर जाएगा तो एक y बचेगा। ओके, अभी यहाँ पर से ये 2 2 कैंसिल, और y प्लस 5y प्लस 7 और 5y प्लस 7 वो भी कैंसिल, तो ये बचा क्या 3 और ये y और 5y माइनस 7। By using factorization through finding common factors, regrouping and using identities. In the next topic, I will let you know about how we can find the errors and how we can make them correct. Okay? So till then, do practice of these terms, these sums.
सारे के सारे टर्म को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो सारा प्रैक्टिस करना और सारे सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।